Shri Gurubhyo Namaha. I am very happy that I have this opportunity. Geeta ji, Ankur, and all the so much passionately interested listeners who would be also contributing to this discussion. Now, I must say at the outset that I am not a deep student of Dharampalji's writing. I wish I was able to devote some time, some specific time to his writings, but I have been so busy with pretty much the same subject, pursuing the classical texts and the modern text also, like that of Aurobindo and other very famous modern Indians. Now, I read Dharampalji's The Beautiful Tree about almost 15 years ago, and it was an eye-opener, as it was for so many of us, because it gave us a very, very accurate picture of the early colonial education in India. And then from some of his essays that I have read off and on, I could see that he is one of those most eminent people who has nurtured this very deep passion to bring the past achievements of India in the field of philosophy particularly, to some modern use. Whatever we study of the past can be meaningful only if it is put to modern use. That is also actually what may be called in a rather old orthodox language as Shruti Smriti Parampara. It's primarily the challenge of updating yourself, keeping your heritage, but bringing heritage to a contemporary use. And that is why when you see the Indian Smritis, then unlike the Bible and the Quran, or unlike other so-called classical texts, they are a growing feature. They are texts that have grown with time. And they talk about human conduct, they talk about dharma, they talked about the choices that mankind has to make at the given time. That is really the notion of Kal, because Kal is not something which is present only as present, past, or future, but is a unity. It is in fact a presence which manifests according to the moment in terms of past, present, and future, but is there as the eternal reality. Now, it is this notion of Kal which has created in India the desire to keep what is considered to be everlasting, what is sometimes called in English as perennial, or what is called in Sanskrit as Sanatan or Chirantan, whatever you may choose to call it, and at the same time as something which is of the moment, that is, which is placed within the individual, which is there and there all the time. Now, when you think of the present, how do you think about it? We know that the past world is like history.
It is something that happened, and then there are notions of history and various ways of creating history, imagining history, and hence using history. But then, in contrast with that, is the present. How do you look upon the present? Most of us, particularly those of us who have what may be called a background in Western education, we tend to look upon the world in terms which are largely material, in terms which can be measured. So for us, history can be validated best by archaeology. Our society can best be validated by the various classes that it consists of. Our world is to be looked upon, and other creatures in this world, other beings, those who are live and those who are not live, what is called in Sanskrit as Jad and Jangam, those that move and those are stationary. So in this outer world is looked upon in material terms. And in material terms, it means how much of it can be used by us. In other words, how much of it can be consumed by us. So it is largely with a consumptive approach that the present man looks upon its present day world. However, the notion of what is really the world, or the world around us, the people around us, nation, etc., is much better defined by a verse from the Mahabharata. This verse has been found in various other Indian texts, because you know that in the Indian text there is nothing like a copyright. You can always quote somebody, sometimes even without mentioning the person, or you can just say that we have heard it to be like this way, and it has come down to us in this way. So this verse, which is one of the anonymous verses, but is also found in Mahabharata, goes something like this. And to my mind, this is the best description of what may be called the material world. How should we look upon it? And then you will see that how it is different from how we look upon the world in Western terms. Now, the verse goes like this. It says that for the sake of the individual, I'll give you the meaning first. For the sake of the family, give up the individual. Ekam tyajet kulasyarthe. He says the individual is not supreme. The individual's interest is superseded by the interest of the family. Ekam tyajet kulasyarthe, gramarthe kulam tyajet. For the sake of the gram, and the gram can be a city, the gram can be a real village, a small village, but a living unit, big or large, modern or medieval or ancient. So, ekam tyajed kulasyarthe, gramarthe kulam tyajed. Gramarthe kulam tyajed, gramam tyajed janapadasyarthe. Give up the individual's interest for the sake of the family's interest for the sake of the gram or the habitat or the station or the city, and give up the interest of the city for the sake of the Janapad. And Janapad could mean in modern terms even Rashtra, if you define modern nationalism that way, or it could mean
the state, a given state of a king or a ruler in older times. So, and then the final punchline is that Atma the prithvim tyajet. That for the sake of Atma, the self, you can give up the whole world. Now, in this one single verse, there are 6 units defined. Ekam, the individual who has a body, a mind, a personality, individuality, around which all the notions of freedom and restrictions as defined in modern times run, and even in ancient times, all the restrictions of acharan or conduct, what kind would the person do and how he or she would act. So that is the individual, ekam. Then kula, or the family, gram, city, Janapath or nation or a large territory, then the earth, Prithvi, and finally, over and above all these 5 is the Atma. Now you can see that here a leap is taken from the material into something which is beyond the material. Let's just call it beyond the material. Let's not call it spiritual. You can see that Atma is the word used here. And in the beginning, the word used is not Atma or the self, but the word used is Ek. Ek then denotes a single body, a pinda, a person with a body, mind, etc. So it is the person, from person to the family, to the grama or the habitat, then to the larger habitat of the nation, then to the earth, and then all these 5 are transcended for the sake of Atma. For the sake of Atma, or discovering what is really Atma, or discovering what you really are, knowing yourself, Atmarthe prithvim tyajet. You can give up, you must give up, you should give up, or rise above all the earth or all the existence. Now you can see that this is something very different from modern sociology, from a modern way of defining the world in which you have nations and classes and ethnicities and people whom you divide, people who are the basis for making new nations, dividing nations, reforming territories. All these things which concern us as units of happiness or things which will give us happiness. This is the modern world in which we are constantly looking upon the individuals or persons and persons as conglomerates. These are the conglomerates that keep changing. For instance, now in the last 50 years, when you say ekam tyajed kulasyarthe, we are living in a world in which kula or the family has either in some places just disappeared or is about to disappear. And in all terms of modern living, it has shrunk. It is no longer a binding unit. And what is a larger unit? The city, which is more important. And even more important, the city is the state. So we are coming into a social organization and into a world in which the individual directly relates to the state, or the state which cannot be defined so easily, but the state is defined in terms of the governor or the power. And whatever is in between and all the human relationships, they disappear. Now, this is the new emerging modernity. Modernity which is based upon the latest technology, digital technology. Now you can see that
We have entered almost a post-nation world in which corporations like Amazon and Google and other digital organizations are far more powerful. They are, as a matter of fact, far more tangible, real, and they decide what is going to happen in which place than, let us say, the so called heads of the state. So we have come into a world which is radically different from what was even, let's say, 100 years ago or even 50 years ago. And we are sharp progressing towards a kind of a world which is perhaps based upon sensory experience, but which has no stability and certainty. Now, this being the human condition today, the global condition, things that have started operating now very forcefully, how do you reconcile the older notions that we inherit from our ancestors? And this kind of a schizophrenia would apply not just to India, but it would apply perhaps to people in other parts of the world too. Because whosoever would study their heritage or their world as it was given in their ancient text or classical text, he would find the same yawning gap between modernity and the ancient times. What is it that can possibly create a link? What is it that can make us perceive something which is tangible and on which we can base our action? Will it be an attempt to just revive old things? As many people say, let's revive the family, let us revive the neighborhood, let us go away from an over-consumptive world into a world where you care more for environment, you care more for other, not just human beings, but other living creatures, and even for the inanimate things, jada, the elements. And how can you relate to them and create a better world? And at the same time, this material organization of the material world is changing so rapidly. With almost every decade, new technology comes and changes the whole social order of things, that there is absolute confusion. So, where do I stand? How do I look upon something in terms of relating to the family? Is there a family to relate? I find that the family to relate is half family in reality and half in virtual reality. I mean, that is something which has become the truth, not just for the rich or the well to do, but even for the very poor people. People who live in villages or who have left their villages to seek a living elsewhere, they are communicating with their family through the virtual means today, just as I or you may be doing. So things have become so much like an Indrajal, so much like a reality which is not just the reality of simple five senses, but a very complicated reality. And everything is defined in that world. Now, how do you negotiate with that world? How permanent is that world? How tangible is that world? How reliable is that world? This is, I think, one of the greatest fear of the present day mankind. And from this, I find that if you just look upon certain older notions, which we can always, in Indian terms, state that
There are certain values that we have inherited, like the values of four Purusharthas, Dharma, Artha, Kama, Moksha. We have inherited the notion of Varna and Ashram. Varna in terms of occupational division, economic division, and ashram in terms of biological avastha, that one learns, then one earns, and then one distributes. So these are things which can be talked about even as values today, but the present day world has become so uncertain, and it has become uh, so difficult to capture or even predict, that most of these ancient values uh, are values that you find very difficult to apply. So I think the the modern world is living in a very great crisis. It's living in a great crisis because the environment itself is changing. And it is changing so fast that you find it difficult to commit yourself to something. So, how do you decide what should be my conduct? What should be my conduct towards other fellow beings? This is one of the gravest situation that we face today. And the classical learning or the good old Indian values can help us see things as changing, and it is the change which seems to be the dominant change, the dominant factor, and against which we have to negotiate. How do I uh, how do I deal with it? Now, one of the texts that illustrates some of the biggest changes that perhaps took place in Indian society is the Mahabharata. Mahabharata is a text which is said to have been written when the Dwapar had almost run its course and Kali Kal had begun. In other words, it is a period when there is a radical change happening. And it is called usually Sankarakal. That is when all kinds of values get jumbled up, when you don't know what is to decide, what is the right course of action. Shall I go this way or shall I go that way? When at every moment a hero has to make a decision about his choice or her choice. Will I be following dharma or will I be committing adharma? This is something which becomes uh, not an occurrence, say, once in a decade, but almost every week. So this is the kind of situation that you find in Mahabharat Kal, which is called the Sankar Kal, when the two yugas are meeting. And this is being repeated, so it seems to me, now. This is the moment where things are changing so fast that you are not able to decide about the course, the correct course of action, and the values based, uh, and the values which would help you decide on something with confidence. What was the solution which people at the time of Mahabharata worked out? Because they were living at this in this age when things were transitioning, and it was not easy to decide what was the right course of action. Mahabharata
If you read the very opening of it, says that this is a text about Yudhishthir and about Duryodhana. Yudhishthir is somebody who wishes to understand and practice dharma. And Duryodhana is somebody who cannot help departing from dharma. He is full of pride, anger, manyu, as the text says. Manyu, is it? So it is the anger, it is the arrogance, the great, great arrogance that he has, which does not allow him to follow the right course of action. I'm not able to recall it, but there is a verse in Mahabharata where Duryodhana says, I know what is right, but I'm incapable of following the right because my own nature, my own prakriti does not allow me to follow it. So this is the situation of the man full of pride or man full of himself. So this manyu is that which takes one away from dharma. It's the same similar paradigm which is worked out in Ahur Mazda, where the Ahur Mazda is the force of good, and Angra Manyu, again Manyu, the anger is the one. So it seems to me that the present situation is one in which mankind is now too full of itself, and it has to look upon things in terms of humility. Some other civilizations have always thought that trouble begins when man overshoots himself. The Greeks thought that it was hubris which always led to the downfall of man. It was a pride in oneself and disregarding the eternal order of gods that caused the downfall of man. So it is the same thing that when you rebel against what is the cosmic order or the Rit, that you have every kind of suffering. Now, it is the same situation that we are today in a very acute manner, and therefore the only refuge is the refuge of dharma. But dharma is not something which can be easily pursued in terms of certain platitudes. This is one of the most common mistakes that we make, that we just take a few quotations and we say satyam vada and dharmam chara and etc., etc. As a matter of fact, the very notion of dharma lies in deciding at every given moment as to what is the right action. And if the wrong action is made, a wrong choice is made, then it leads to a very large number of wrong choices. Talking again of Mahabharata, Bhishma made a very wrong choice. You see, he agreed to a very petty carnal desire of his father Shantanu. He said, okay, Dad, I let you have this woman and enjoy her, and I will promise that I'll stay an ascetic all my life. Now, he followed the desire of his father, but was he following dharma also? He was under the illusion that he is following. If you take the example of Rama, the example of Ram is very different. When Ram said that I'll go to the forest, then he was following dharma because his father was under compulsion. His father had no choice. He had to fulfill whatever vow he had given to his wife. So that was a very different choice. Deciding the wrong thing, even on the basis of our learning, even on the basis of what we have inherited from the past, if you make a wrong choice, then that choice becomes adharmic. So, to sum up, what I am trying to say is that in
times which are what may be defined as Sankar Kal. That is, when times are not so, when things are not so clear, but things are under a very great clash and a very great rapid transformation, then one has to be very careful and define what is the right choice of action, how much you can take from the past, and what is it that you have to throw away from the past. And to reconcile with the past itself is one of the greatest problems for human beings, because they are not able to accept so often the mistakes that they have made, the great horrors that they have themselves committed, or where they have lacked, or where they have failed in their duty towards their fellow human beings. So acceptance of the past and acceptance of history that way, and deciding a future course of action, which is primarily a dharmic course of action, which is not based upon increasing national honor or increasing national income, or following the pursuit of making India Vishwaguru, or something like, which is very triumphant. But on the contrary, our effort should be to understand what is the right course of action for me as an individual, me as a society, in terms of dharma. What is the right dharmic choice? And I think that's the only way one can use the past and go to a better and a safer user. Thank you very much for giving me a patient hearing. I don't know if I have been very lucid or clear. I was trying to, explore something which is not so tangible or easy to to grasp. So I seek your forgiveness if I have not been very clear. But I hope at least I have attempted to make you think about certain things, and we can have that in this course of action and in the speech of Pawan Gupta ji also. Thank you very much. So I think I thank you so much, sir, for this wonderful session, wonderful speech. I would now request Geeta Dharampal ji if she can. Well, Bharatiya Chitmanas and Kal is basically a philosophical historical treatise which contain deep insights into the Indian civilizational ethos, about which you have heard a lot from Bharat ji. The text was first written in Hindi, and it emanated from recorded discussions with friends in Chennai in early 1991. And then in the form of essays, the text was published in Jansata in April 1991 in 5 consecutive installments, the 16th, 17th, 18th, 19th, and 23rd of April 1991. Then a few months later, the Jansata Hindi articles were published together in book form. The complete text was then translated into English by J.K. Bajaj and was accompanied by a terminological glossary. And it's this English version which was published in early 1993 by the Center for Policy Studies in Chennai. The English text has since been republished several times, first in volume 5 of Dharampal's collected writings, published by the Other India Press in 2000, and then again in 2003, and again in 2007. And then more recently in 2021, as volume 5 of the Dharampal Classic series in Bangalore and Chennai. Translations into Gujarati and Hindi were published in the Dharampal Samagra Lekhan in 2005 and 2007. So given the text's wide appeal, this
treatise has also been published twice in Kannada as a complete version and then also as a shorter annotated version. And then in another version, as a popular booklet, it was brought out by the Azadi Bachao Andolan in Allahabad. So as you see, the text has been received very widely in India. But in addition, Bharatiya Chitmanas and Kal attracted the attention of US specialists in intercultural religious studies, and a symposium on the book was published by the Hindu Christian Studies Bulletin in 1995. Francis Clooney, a renowned Harvard professor and Jesuit scholar who edited the symposium, initiated the discussion with a detailed summary of the book, comprising an appreciative understanding of the alternative Indian cosmological view it depicted. That's alternative to the Christian view. This was followed by an interfaith discussion, Hindu and Christian, that was so well received by an interested readership that the discussion was continued in the bulletin's subsequent issue in 1996 with contributions by J.K. Bajaj and M.D. Srinivas. It's a shame that both of them are not present here today, but maybe they'll listen to the recorded version. But now, very briefly, a few words about the content of Bharat, Chitmanas and Kal. The text basically introduces the reader to the essential component parts of our civilizational ethos and draws our attention to the manner in which our Indian ethos is at odds with modern conceptions. So it's this Indian ethos is at odds with modern conceptions. That's a central theme that runs through the text. More specifically, by spelling out very clearly our Indian traditional concept or conceptions of time and space, and subsequently acknowledging in this vast temporal and spatial universe the insignificance of man, of humankind, his knowledge and his crafts in the scheme of creation, Dharampalji aimed to underscore the enormous value of the intellectual and spiritual sustenance, of the spiritual strength that could be derived from such a worldview, such a traditional worldview, and also grasping the theoretical proportions of existence, of human existence, the smallness of human existence within this vast cosmos. So it's a philosophical cosmology that, according to Dharampalji, was defined by a totally different logic to the one operative in the modern perspective. So it's these two different views of cosmology of the universe of existence, the traditional Hindu perspective and the modern one, about which Bharat was telling us something. But Dharampalji's intention in doing this, however, and this I would like to emphasize, was not to extract India from the modern world. At least this is how I understand it. Rather, his overarching concern was to instill us, modern Indians, with self-confidence. For him, it was essential that modern Indians should have the self-assurance that our Indian worldview is valuable and that our contribution, governed by this traditional worldview, could perhaps influence global agendas. In a more philosophical vein, Dharampalji stated or averred in Bharat, Chitmanas and Kal that the ways of the world are governed by a logic unfathomable to men. You can't grasp the logic. As a human being, you can't grasp the logic of existence, of the ways of the world. Yet simultaneously, in a more practical, affirmative tone, Dharampalji concludes the Bharat, Chitmanas and Kal text with the following
reassuring prospect. And I quote from his text, the English text: to redefine our seekings and aspirations, our ways of thought and action in a form that is appropriate and effective in today's world may not be too hard a task at all. So it's doable to sort of to understand and to make it more appropriate. Such reassertions and redefinitions of civilizational thrust are not uncommon in history. It's happened before. For every civilization, there comes a time when the people of that civilization have to remind themselves of their fundamental civilizational consciousness and their understanding of the universe and of time. So the Bhartiya Chitta, Manas and Kal. From the basis of that recollection of the past, they then define the path of their future. Many civilizations of the world have undergone such appraisal and self-renewal at different times. In our long history, many times we must have engaged in this recollection and reassertion of the Chitta and Kal of time, of India. We need to undertake such an exploration into ourselves again. And that in a way is a call to us, that we need to reflect on this, on our own civilizational ethos and the way it differs from the modern, and the way this knowledge of our own civilizational ethos can give us strength to cope with modernity. So indeed, Bharat, Chit, Manas and Kal comprises a much needed blueprint for our civilizational renewal. Hence the crucial importance of the slim volume, about which our two eminent speakers, Professor Bharat Gupt and now Shri Pawan Gupta, will reflect in greater depth. And Bharat Gupt has already spoken about the civilizational ethos from his perspective. So now it's my honor and pleasure to introduce our second speaker, Shri Pawan Gupta, to you. Shri Pawan Gupta, as many of you know, was a close associate of Dharampalji during the last decade of his life. Pawan, together with his wife Anuradha, is the founding director of the Society for the Integrated Development of the Himalayas, which is known under the befitting acronym SIDH, an institution that focuses on reactivating local patterns and structures of education. In short, Pawan, a good friend, is an educator, a writer, a public intellectual, and what is important for us today, an engrossing speaker. So he's deeply interested in exploring traditional knowledge systems, Indianness, and the problems of modernity. So I would like now to call upon Pawan Gupta, Pawan, to give his presentation. We are greatly looking forward to it. So now the mic is yours. Thank you, Pawan. भगवान बुद्ध का जो पाली लिटरेचर है, जितने श्लोक मैंने सुने हैं और काफी सुने हैं, क्योंकि मैं विपश्यना का स्टूडेंट रहा हूं एक जमाने में, उसमें जब वो श्लोक शुरू होते हैं तो 3 शब्द उसमें जरूर होते हैं, और वो 3 शब्द हैं एवं में सुतंग, दस आई हर्ड। तो वो जो जिसने ये चीज रिसाइट की, वो ये बोल रहा है मैंने ऐसा सुना, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा वो नहीं कहता है, वो ये कह रहा है मैंने ऐसा सुना। तो जिम्मेदारी मेरी है, और मैं आज जो अपनी बात रखने जा रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि धर्मपाल जी ऐसा सोचते थे या ऐसा बोलते थे, ये मेरी समझ है धर्मपाल जी के बारे में। जितना मैं समझ पाया हूं धर्मपाल जी के पूरे काम को, जो उनका शोध का काम है और अन्य लेख हैं, उनको मैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज में रखता हूं। एक कैटेगरी है जिसमें से निकला द ब्यूटीफुल ट्री,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, एक इस तरह का काम है। उसमें एग्रीकल्चर के फिगर्स हैं, कितना उन्नत हमारे यहाँ कृषि होती थी, जंगल पेट के बहुत सारे डेटा हैं, उसकी सोसाइटी कैसी थी, वगैरह वगैरह। दूसरा काम है जिसके कुछ लेख हम लोगों ने रीडिस्कवरिंग इंडिया किताब करके छापी थी, उसमें कुछ आता है जिसमें आपको ये कुछ पता चलेगा कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे देखा, यानी व्हाट वाज देयर परसेप्शन, हाउ डिड दे परसीव इंडिया। और उसमें दूसरी चीज जो दिखती है वो यह है कि अंग्रेजी दिमाग कैसे काम करता है, ये अंग्रेजी दिमाग कैसे काम करता है और भारत को कैसे देखता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं लेकिन फिर भी अलग अलग है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो 1827 में विलियम बेंटिक बैरकपुर में जब बहुत बड़ा रेबेलियन हुआ, सिपाहियों का विद्रोह हुआ, उसके 3 साल बाद विलियम बेंटिक एक पत्र में लिखते हैं, लंदन को वो पत्र जाता है, जिसमें वो लिखते हैं कि अब घबराने की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ा लिखा भारतीय है वो हमारी नकल करने में लग गया है। तो ये अगर आप ठीक से पढ़ें तो ये उनके दिमाग कैसे काम करता है और वो कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, इसकी डेप्थ हमको समझ में आती है। और कैसे परसीव करता है ये भी आपको मिलेगा, जैसे उनके ट्रैवलर्स के अकाउंट में आपको मिलता है कि वो जब शुरू में भारत आए तो वो वहां यहाँ पे उनको समझ में नहीं आया ये देश, क्योंकि आए तो इसीलिए कि यहाँ की बहुत उन्नत चीजों को से आकर्षित होके आए। यहाँ इतना बड़ा उत्पादन हो रहा है 1750 तक, अब तो हम सब जानते हैं, ये वेस्टर्न इकोनॉमिक हिस्टोरियंस भी बोलते हैं कि भारत में दुनिया का 1/3 मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इन इंडिया से हो रहा था, जिसमें कृषि, गैर कृषि उत्पाद, कृषि को छोड़ करके यहाँ का स्टील, यहाँ का सूत, यहाँ का कपड़ा वगैरह वगैरह, तो इतना बड़ा उत्पादन हो रहा है। यहाँ का गणित की बात तो वहां पहुंची गई होगी, यहाँ की एस्ट्रोनॉमी की, यहाँ की एस्ट्रोलॉजी की वगैरह वगैरह की, यहाँ की पांडित्य की बातें तो वहां पहुंची होंगी जरूर, और यहाँ इतना बड़ा ये समृद्धि की बात पहुंच गई है। इससे आकर्षित होके वो लोग आते हैं यहाँ पे, पर उनको ये देश समझ में नहीं आता। ये बात भी हमको आज कम से कम समझने की जरूरत है कि उनको समझ में ये क्या चीज होती है, कि जब मैं कहता हूं कि समझ में नहीं आता, तो एक उदाहरण मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा शायद है कि हमारे यहाँ का जो बड़ा आदमी है, और बड़ा से मेरा मतलब सिर्फ राजा महाराजा या बहुत पैसे वाले नहीं, परंतु इवन पांडित्य में जो बड़े लोग हैं, वो लोग जिस तरह से कपड़े पहनते हैं और यूरोप में जो बड़े लोग हैं वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे वहां के लोग जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनते हैं, जो बड़े लोग हैं, जितनी जरूरत है मौसम के हिसाब से, ठंड की वजह से, उसकी तो पूर्ति हो ही रही है कपड़ों से, लेकिन उससे कुछ अधिक पहनते हैं। और हमारे यहाँ कमर के ऊपर बड़े से बड़ा आदमी भी नंगा है, या हमारे पाँव में कोई जूता या चप्पल नहीं है बड़े से बड़े आदमी के, और वहां जो बड़ा आदमी है वो शायद बूट पहनता है, साधारण आदमी शायद चप्पल नुमा या जूते पहनता है। तो ये एक, और वो बग्गी में चलता है, ये पैदल चलता है साधारण आदमी। यहाँ पे साधारण हो, कोई भी हो, पैदल चलने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ये बहुत वो नहीं है, एक इस चीज को बताने के लिए कि उनको ये देश कुछ अटपटा सा लगता है। या जैसे यहाँ पे कई जगह का विवरण है कि भाई यहाँ पे चोरी नहीं होती है, या एक पटना हाईकोर्ट का एक जज बोलता है कि ये कैसा देश है कि यहाँ पर लोग धर्म की किताब पे हाथ रखने के बाद फांसी चढ़ जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये बात उनको समझ में नहीं आती है। या यहाँ पर अंग्रेजों को एक जमाने में ये समझ में आया कि और देशों में हम जब मौत की धमकी देते हैं, किसी को मार देने की धमकी देते हैं, तो वो आदमी घबरा जाता है और आपकी बात मान लेता है। लेकिन भारत में अगर आप किसी को बोलते हैं कि हम तुमको जान से मार देंगे, अंग्रेज अगर बोलता है, तो भारत का आदमी बोलता है कि तुम कौन होते हो मारने वाले, हमको तो जब तक ऊपर से लिखा के लाया हूं, जब तक जिंदा रहना रहूंगा। आप मार सकते हैं, नहीं मार सकते, आपके हाथ में नहीं। तो ये जब इनको बात समझ में आई,
तो इन्होंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बदली कि यहाँ के आदमी को मौत की धमकी मत दो काम करवाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए, पर यहाँ के लोगों को टॉर्चर की धमकी दो। तो ये मौत का डर और टॉर्चर का डर, इसका डिस्टिंक्शन अंग्रेज समझते हैं भारत के संदर्भ में। तो मैं ये बातें सिर्फ एक झलक आपको देना चाहता हूं कि धर्मपाल जी के काम में एक तरफ तो आपको वो व्यवस्थाओं के जो परिणाम है, जो ब्यूटीफुल ट्री में कि इतने बड़े पैमाने पे स्कूल चलते हैं, इतना बढ़िया स्टील बनता है, वगैरह वगैरह है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, ये सब पता चलता है। दूसरी तरफ उनके लेखों से ये भी पता चलता है कि अंग्रेजों का दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे हमको देखते हैं और देख करके क्या समझते हैं या गलत समझते हैं, सही समझते हैं। इसके बाद में एक तीसरी जो उनकी महत्वपूर्ण लिखा हुआ है उस पे आने से पहले, जिसमें भारतीय चित्तमानस काल आता है, उससे पहले एक बात और मुझे लगता है जरूरी है इस बात पे बात करना कि धर्मपाल जी का जो पूरा शोध का काम है वो कोई पीएचडी की थीसिस वाला काम नहीं है। वो जो उन्होंने ये काम किया, धर्मपाल जी तो अगर हम कहें तो वो उन्होंने तो बीए पास भी नहीं थे ना, बीच में पढ़ाई छोड़ दी 42, तो उन्होंने बीए भी कंप्लीट नहीं करी। तो उस हिसाब से वो तो क्वालिफाइड एकेडमिशियन ही नहीं है। पर उनकी ये जो शोध है ये इसलिए शुरू हुई कि जब वो अवार्ड नाम की एक संस्था में थे, जिसके जेपी जयप्रकाश जी उसके प्रेसिडेंट थे और धर्मपाल जी उसके मेंबर सेक्रेटरी थे। उस समय उन लोगों ने भारतीय न्यूली इंट्रोड्यूस भारतीय ये पंचायत सिस्टम जो हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था शायद 57 के आसपास, उसको स्टडी करने के लिए ये गए राजस्थान के कुछ गांव में। और वहां जाकर जब इन्होंने उसको स्टडी कर रहे थे तो इनको पता चला कि भाई ये एक सरकारी पंचायत है और एक ट्रेडिशनल पंचायत है, और जो रुतबा है लोगों के बीच में वो ट्रेडिशनल पंचायत का है, वो इस सरकारी पंचायत का नहीं है। ये तो एक तरह से वो ढो रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनके ऊपर इम्पोज किया हुआ है, तो चला रहे हैं काम, खाना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन असली पंचायत तो वो ट्रेडिशनल पंचायत है, जिसको 20वां पंचायत, और फिर तो बहुत कुछ पता चला उनको। लेकिन मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, मैं इस बात पे ध्यान दिला रहा हूं कि ये जब उनको पता चला कि एक ट्रेडिशनल पंचायत है और उसका बड़ा रूप, उसकी बात चलती है, उसकी मान्यता है समाज के बीच में, तो धर्मपाल जी को ये शायद लगा कि भाई हम पढ़े लिखे लोग जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ते में बैठे हैं और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं और अपने को बहुत ऊंचा और बहुत अवेयर मानते हैं, और आज भी वही बात है, आज भी जो पढ़े लिखे का अहंकार है मेरे जैसे लोगों का, और वो दिखाई नहीं देता, वो ऑब्वियस नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दिख जाएगा। ये जो अहंकार है जो हम में भी है, मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत गहरा है और बहुत, ये अहंकार ही होता तभी भी चल जाता, पर ये कितनी बड़े आंख पे हमारे पर्दा डाला हुआ है कि हम अपने ही लोगों को नहीं जानते। तो धर्मपाल जी को ये लगा, और ये उनकी सेंसिटिविटी और ये उनका ओरिजिनल माइंड था कि उनको ये बात पता चली। ये मैं नहीं मान सकता कि दूसरे कोई भी एक आदमी नहीं होगा देश में, या लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको इस पंचायत के बारे में पता नहीं चला होगा। लेकिन पता चलने के बाद भी जो असर धर्मपाल जी में हुआ और जो असर दूसरों में होता है वो दो तरह का होता है। धर्मपाल जी पे ये असर हुआ कि ये क्या हो गया हम लोगों को कि हम अपने ही समाज को नहीं जानते, अपने ही लोगों को नहीं जानते, और ये इतना गहरा हुआ ये इसका असर कि उन्होंने ये शायद निर्णय लिया कि हमको अपने समाज को, अपने देश को, अपने लोगों को समझने की जरूरत है। एंड दैट वाज द ट्रिगर जिससे कि उन्होंने ये सारा जो काम किया, जिसकी अब हम बहुत गुणगान करते हैं, आर्काइव्स में जाके, लाइब्रेरीज में जाकर उन्होंने ढूंढ के जो चीजें निकाली, और ये भी मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि जिन चीजों को उन्होंने आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज में देखा उसको और लोगों ने नहीं देखा, बिल्कुल देखा है। महात्मा गांधी ने तो निश्चित देखा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने देखा, इसका प्रमाण है कि 1931 में गांधी जी चैल्टम हाउस लंदन में ये बात कहते हैं
एक अंग्रेज को एक पत्र में कि लुक इनटू योर ओन रिकॉर्ड्स। उसका संदर्भ यह है कि गांधी जी ने यह कहा कि भाई 100 साल पहले हम कहीं ज्यादा शिक्षित थे इस देश के लोग। हम हमारी बहुत सुंदर एक व्यवस्था थी और उसका उन्होंने उपमा दी एक ब्यूटीफुल ट्री, सुंदर वृक्ष से, और वो वृक्ष को आपने जड़ से उखाड़ दिया और उन जड़ों को आपने एक्सपोज छोड़ दिया, तो वो धूप पानी में एक्सपोज हो गई और धीरे धीरे वो वृक्ष, सुंदर वृक्ष मर गया। ये उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा। और ये जब कहा तो किसी ने उनको चैलेंज किया और उसके जवाब में गांधी जी ने एक ही लाइन लिखी कि लुक इनटू योर रिकॉर्ड्स, तुमको पता चल जाएगा। और धर्मपाल जी ने, तो इसका मतलब गांधी जी को सुराग था कि इस तरह की चीजें अंग्रेजों के रिकॉर्ड में हैं। अब अगर उनको पता था और लोगों को भी पता होगा, और उसके बाद भी लोगों ने देखा होगा, लेकिन किसी ने वो निकाला नहीं जो धर्मपाल जी निकाल पाए। तो धर्मपाल जी हैड एन ओरिजिनल माइंड। ये मैं बार बार मुझे अब लगने लगा, और मैं क्यों ओरिजिनल माइंड बोलता हूं, इनकी तारीफ में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि आज का पढ़ा लिखा जो आदमी है वो अपने को रैशनलिस्ट मानता है। वो मानता है कि मैं लॉजिक से सोचता हूं, रैशनल होके सोचता हूं। उसको मेरे एक गुरु तुल्य है, जैसे धर्मपाल जी गुरु तुल्य है, वैसे ही एक और गुरु तुल्य है सैमडोंग रिम्पोचे, वो उसको बोलते हैं द ऑर्डिनरी रैशनल माइंड। तो धर्मपाल was not an ordinary rational mind. Dharampal was an original mind. So when he saw certain things, what he perceived or what he concluded out of that was different from what others do. एक तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस पे बहुत विस्तार से बात होनी चाहिए। ये दो दिमाग, ऑर्डिनरी रैशनल दिमाग क्या है और ओरिजिनल दिमाग क्या है, इस पे बात हमारी होनी चाहिए, लंबी बात होनी चाहिए। पर मैं तीसरी बात पे आता हूं। मैं धर्मपाल जी के काम को 3 भागों में बांट के आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात हो गई ब्यूटीफुल ट्री, साइंस टेक्नोलॉजी। दूसरी अंग्रेजी दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे परसीव करता है। ये सारा काम करते करते धर्मपाल जी को मुझे लगता है बहुत दुख हुआ होगा। वो दुख जो है, क्योंकि मैंने उसकी थोड़ी झलक भी देखी है, वो रात रात भर सो नहीं पाते थे, और ये सिर्फ इंसोम्निया उस तरह का नहीं था कि उनकी बीमारी के कारण, वो परेशान थे कि ये देश की जो डिसफंक्शनैलिटी है, ये उनको पता चल गया कि ये देश में क्या उन्नत व्यवस्था थी, इसके तो प्रमाण उन्होंने निकाल ही दिए। और ये भी देख रहे हैं कि इस देश की हालत क्या हो गई, और वो देश की हालत के लिए सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्लेम नहीं करते हैं, वो एजुकेटेड क्लास को ब्लेम करते हैं, भी ब्लेम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं उनको भी ब्लेम करते हैं। और उनको एक बात और, ये धर्मपाल जी की खूबी है, देखिए वो एक रिकॉर्ड है उनके, आप रीडिस्कवरिंग में भी इसका जिक्र है कि वो एक 1942, और इन सब बातों को हम जब तक जोड़ के नहीं देखेंगे मुझे नहीं लगता हम धर्मपाल की बात कर पाएंगे। 1942 में रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मैं उसको अमेरिका का एक तरह से नए अमेरिका का निर्माता मानता हूं, 3 बार प्रेसिडेंट रहे। 42 में वो ब्रिटिश राजदूत जो अमेरिका में है उसको व्हाइट हाउस में बुला करके उससे उनकी चर्चा होती है भारत को लेकर, और उस चर्चा में वो ये कहते हैं कि भारत को कब आप आजादी देंगे, क्योंकि आजादी की बातें उस समय होने लगी है, वो तो आपका मसला है, लेकिन मेक श्योर दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट धर्मपाल जी को लगता था, और मुझे अब लगने लगा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मेक श्योर दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट, बिकॉज इंडिया हैज द पोटेंशियल टू गो अदरवाइज। ये उसने कहा नहीं, ये मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि इंडिया के पास वो पोटेंशियल है कि एक दूसरी तरह की दूसरा पैराडाइम का निर्माण कर दे। वेस्टर्न ऑर्बिट का एक पैराडाइम है, इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, राइट विंग पॉलिटिक्स, इससे कोई फर्क पर नहीं पड़ता है, दोनों ही वेस्टर्न ऑर्बिट में ही रहें। आप इसको सुनिश्चित कीजिए, और फिर उसी से आप जोड़िए जवाहरलाल नेहरू का राज्याभिषेक को। ये इससे जोड़े बिना बात नहीं चलेगी।
मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो कुछ खैर उसमें मैं अभी नहीं जाता हूं क्योंकि वो बात बढ़ जाएगी, पर कम से कम नेहरू को तो जोड़ के देखना चाहिए कि नेहरू जी का राज्याभिषेक, मैं राज्याभिषेक जानबूझ के बोल रहा हूं, ये जो वेस्टर्न ऑर्बिट में रखने वाली बात है उसके साथ जोड़ के मैं तो कम से कम देखता हूं, बल्कि उसके बाद भी देखता हूं। उसके बाद भी 67 में भारत में जो हुआ, 69 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भारत में हुआ है, और 77 का जो जनता पार्टी का बनना, और उसके बाद 80 में उसका ध्वस्त हो जाना, ये सबको मैं जोड़कर उस चीज से देखता हूं। उसके बाद भी सोवियत रूस के खत्म होने के बाद भी जो घटनाक्रम हुए हैं उसको मैं उससे जोड़ के देखता हूं, पर वो एक अलग किस्सा है। मैं पुनः अपनी बात पे आता हूं कि धर्मपाल जी के ये दुख का कारण ये था कि ये हुआ क्या है, ये विदेशों ने जो किया कि भाई वेस्टर्न ऑर्बिट में रखो और इसलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रॉप अप करो, उस तरह की कंडीशंस बनाओ, ये तो अपना एक, पर हम लोगों को, हमारे क्लास, हमारे एजुकेटेड क्लास को क्या हो गया, क्योंकि एजुकेटेड क्लास ही तो देश को चला रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी आ जाए या मनमोहन सिंह, एजुकेटेड क्लास ही देश को चलाती है, अफसरान उसी के हैं, मीडिया उसी की है, एकेडमिक दुनिया उसी की है, यही लोग चला रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स यही है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये तो हम नहीं मान सकते कि एजुकेटेड क्लास जो है वो सबका सब बदमाश है या ये लोग देश को खड़ा नहीं करना चाहते, ऐसी बात नहीं है। तो हुआ क्या है, तो फिर उन्होंने उसी में से, इस पीड़ा में से एक स्पेक्युलेटिव बात उन्होंने, क्योंकि धर्मपाल जी स्पेक्युलेटिव अंदाजा लगाना, स्पेक्युलेशन मतलब गैम्बलिंग नहीं, परंतु अंदाजा लगाना कि जब जिस देश का साहित्य, जिस देश का इतिहास इतना भ्रमित हो, इतना गड़बड़ लिखा गया हो, और पूरे एजुकेटेड क्लास का परसेप्शन, दृष्टि ही दोष हो गया हो, तो आपको थोड़ा स्पेक्युलेटिव होना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने उसी नजरिए से भारतीय चित्तमानस काल लिखा। वो ये उसमें ये कहना चाह रहे हैं, शायद ये एवं में सुतंग वाली बात है, ये तो मैं अपनी बात कर, वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये भारत का जो साधारण है, वो जिस तरह से सोचता है, जिस तरह से अपने निर्णय लेता है, अपने डिसीजंस लेता है, जिस तरह से वो अपने सुख और दुख से डील करता है, जिस तरह से वो अपनी कथा करता है, जिस तरह से वो अपनी बातें करता है, जो उसका चित्त मानस और काल उन्होंने नाम दिया, जिस तरह से हमारी दृष्टि रही है, हम जैसे चीजों को देखते रहे हैं, ये आज के पढ़े लिखे संसार जैसा देखता है उससे बिल्कुल अलग है। और ये जो 18वीं शताब्दी का भारत या 19वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी का भारत, जिसमें इतनी एक फंक्शनल सोसाइटी, आपको वाइब्रेंट एंड फंक्शनल सोसाइटी दिखाई देती है, वो सोसाइटी को चलाने वाले लोग, उस सोसाइटी को चलाने वाले समाज, उनका दिमाग शायद आज के साधारण के दिमाग से ज्यादा मेल खाता है या करीब करीब एक जैसा है, और आज जो इस दुनिया को और देश को चला रहे हैं उनका दिमाग कुछ और हो गया है। इसलिए हमको उस दिमाग को, उस चित्त और मानस और काल को समझने की जरूरत है, उसके साथ अलाइन करने की जरूरत है, और उसके आधार पर हमको अपनी दुनिया खड़ी करनी होगी। तो अगर हम वो कर पाएंगे तो फिर ये डिसफंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी, फिर एक अलाइनमेंट होगा और हमारी व्यवस्थाएं, हमारी चीजें हमारी बैठक से खड़ी होंगी। अभी वो बैठक हमारी नहीं है, अभी ये बैठक कुछ और हो गई है और हम कुछ और हैं। मैं उसमें एक बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, इसलिए मैं जोड़ देता हूं। कुछ सालों के पहले, आज से करीब 9 साल पहले, मैंने एक भारतीय भाषाओं पे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। वो इसलिए किया क्योंकि हमारे दिल्ली में बैठे कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, वो उनमें कुछ ऐसा मुझे सुनाई दिया उनकी बातों में कि वो कहते हैं कि भाई अंग्रेजी और भारतीय, तमिल और मराठी के बीच में वही उतनी ही दूरी है जितनी हिंदी और तमिल के बीच में है, या हिंदी और
बांग्ला के वहां बांग्ला भी ले लीजिए, दूरी है। तो वो कह रहे थे कि अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच का जो रिश्ता है वो वैसा ही है जो भारतीय भाषाओं का और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच का रिश्ता है। ये मुझे कहीं खटका, इंट्यूटिवली खटकी ये बात। मेरे पास तर्क तो नहीं थे बहुत सॉलिड, लेकिन मुझे कहीं खटकी ये बात। तो मैंने एक ऑर्गेनाइज किया एक सेमिनार, ऐसे ही देखते हैं क्या होता है। और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन एक गजब की बात हो गई उसमें। उसमें यह बात निकल के आई कि सारी भारतीय भाषाओं में, इंक्लूडिंग हमारी सारी बोलियों में, जिसको डायलेक्ट कहते हैं हम लोग, सभी बोली और भाषाओं इंक्लूडिंग तमिल, मैं तमिल को इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि तमिल संस्कृत स्टॉक से नहीं निकली है, ऐसा लिंग्विस्ट कहते हैं, मान लेते हैं उनकी बात। तो तमिल भी और अन्य भारतीय बोली भाषाओं सब में एक चीज कॉमन है, और वो चीज अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन से अलग है। वो क्या है? वो ये है कि हम, अगर आप मुझे कोई काम दें कि पवन ये काम कर देना, और मैं वो काम कर दूंगा, तो मैं आपके पास आके बोलूंगा भाई साहब वो काम हो गया, हो गया। पर मैं अगर अंग्रेजी में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा द वर्क हैज बीन डन, मतलब वो काम कर दिया है, वर्क हैज बीन डन। मेरा हाथ अगर जल जाए तो मैं भारतीय भाषाओं में कुछ इस तरह से बोलूंगा कि मेरा हाथ जल गया, पर अंग्रेजी में मैं कहूंगा आई बर्न्ड माय हैंड। तो ये जो डूअरशिप है ये हमारी भाषाओं में मिसिंग है। हमारे यहां चीजें होती हैं, वी आर पीपल्स ऑफ अ हैपनिंग कल्चर, हम बोल सकते हैं। हमारी सिविलाइजेशन हैपनिंग सिविलाइजेशन, यहां चीजें होती हैं। जबकि अंग्रेजी, फ्रेंच, ये जो यूरोपियन स्टॉक की लैंग्वेजेस है, वहां चीजें की जाती हैं। अब इसको अहंकार से जोड़, मैं करने वाला, मैंने किया, यहां पे मैंने भी किया, मैंने किया तो सही, लेकिन मैं उस खोने में जो परिणाम आता है उसमें मेरा एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारी दृश्य और अदृश्य, नोन एंड अननोन फैक्टर्स का उसमें समावेश होता है, तब जाकर के वो घटित होता है। और इसको गीता में तो कहा ही गया है बहुत सुंदर तरीके से कि भाई काम करो अपना, और फल परिणाम की कामना मत करो। तो मैं इसको उपदेश नहीं मानता, मैं इसको एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ मानता हूं, और उस स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ को हमारी भाषाओं में पिरोया गया है। तो मैं अब उस पुनः भारतीय चित्त पे आता हूं कि जिस चित्त जो ऐसा देखता रहा है सदियों से कि चीजें होती हैं, हम होने वाली संस्कृति, होने वाली सभ्यता के लोग, और ये हमारे डीएनए में होगा ना कहीं ना कहीं। लेकिन ये होने वाले लोग जब एजुकेटेड हो जाते हैं तो ये करने वाली दुनिया में प्रवेश पाने की चेष्टा करते हैं, और ये सारा का सारा अनकॉन्शियसली होता है, ये सोच समझ के नहीं होता, ऑर्डिनरी रैशनल माइंड से होता है, ओरिजिनल माइंड से नहीं होता। तो ऑर्डिनरी रैशनल माइंड से होता है माने क्या? ये भेड़िया, ये चीजें दिमाग में भी नहीं होती, और हम होते एक प्रकार के हैं और हम बनना कुछ और चाहते हैं, और ये प्राइमरी डिसफंक्शनैलिटी है। ये प्राइमरी डिसफंक्शनैलिटी है कि हम हैं कुछ और हम चेष्टा कर रहे हैं जाने अनजाने कुछ और होने की। ये आपको तरह तरह से आपको दिखाई देगा, और ये हो क्या रहा है, इसने हमको इमिटेटर, हमको पहले तो देयर इज अ डीप इंफीरियोरिटी इन अस। गीता ने बात की कॉन्फिडेंस, बट अनलेस वी सी दैट, where is this inferiority coming from? There is a deep inferiority in us. मुझे याद है करीब उस टाइम को न्यूक्लियर डील हो रही थी, मनमोहन सिंह जी का राज था, और एक वो आपको याद होगा लोकसभा में नोट वोट उठाए अमर सिंह ने, वो पूरा वाकया मुझे वो डिटेल नहीं याद है, पर मुझे याद है उस टाइम बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। उस समय एक अमेरिका के एक सेनेटर हमारे देश में आए थे, और एनडीटीवी के राजदीप, उस टाइम राजदीप सरदेसाई एनडीटीवी में काम करते थे, वो उस सेनेटर को इंटरव्यू कर रहे थे। और मुझे आज भी याद है राजदीप की बॉडी लैंग्वेज,
और मुझे राजदीप की बॉडी लैंग्वेज वो देख लीजिए जब वो किसी देशी नेता को इंटरव्यू करते हैं, खासकर उस देशी नेता को जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है ठीक से, और वो अमेरिकन सेनेटर को वो इंटरव्यू कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का, जो देखना चाहेगा दिखेगा, जमीन आसमान का अंतर। परंतु सिर्फ इतनी बात नहीं है, वो अमेरिकन सेनेटर से ये पूछता है राजदीप सरदेसाई, व्हाट डू यू थिंक इंडिया शुड बी डूइंग इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन? तो अमेरिकन सेनेटर उसको बोलता है, वो सभ्य आदमी रहा होगा, हु एम आई टू से व्हाट इंडिया शुड डू? आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत का कोई एमपी इंग्लैंड जाए या अमेरिका जाए और उसको बीबीसी या CNN उसको इंटरव्यू कर रहा हो, क्या वहां का एंकर पूछेगा इसको कि व्हाट डू यू थिंक अमेरिका शुड बी डूइंग? ये कहां से आता है? और राजदीप तो अपने को बहुत ही मतलब वैसे समझते होंगे ना कि भाई वी हैव अराइव्ड काइंड ऑफ अ थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल राजदीप सरदेसाई, आई एम टॉकिंग ऑफ दैट क्लास ऑफ पीपल। वो कहां से ये आता है उनमें? कोई ने सिखा के तो नहीं भेजा। ये डीप इंफीरियोरिटी का द्योतक है ये बातें, इसको हमको देखना चाहिए। ये इंफीरियोरिटी, डीप इंफीरियोरिटी, बट प्रदर्शन में एरोगेंस, प्रदर्शन में ओवर कॉन्फिडेंस, ये हो सकता है। तो ये, और दिस लीड्स, इसी का दूसरा पक्ष है इमिटेशन। हम लोग इतने सेल्फ कॉन्शियस लोग हो गए कि हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो या एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो या कुछ और हो, हम पीछे मुड़ के ये देखते रहते हैं कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस। हमें अपनी जमीन पे अपनी बात करने की रही नहीं। और मैं देखता हूं कि हमारे आसपास के लोग ही हमको रोकते रहते हैं कि यार ये तो यू शुड बी, this should be more serious, this should be more scholarly। और धर्मपाल जी भारतीय चित्तमानस काल में लिखते हैं इसको कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी इतने स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है, आप करिए अपना काम, कुछ तो खड़ा कर लीजिए अपनी दृष्टि से, अपनी निगाह से। तो भारतीय चित्तमानस काल इज एक तरह से आह्वान है हम लोगों को, एक तरह से हमको एक दिशा, एक संकेत दे रहा है कि किस दिशा में आपको देखना चाहिए। और तीसरी तरफ ये कह रहा है कि आप उनकी परवाह मत करिए, उनके वो उसका उदाहरण देते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का उदाहरण देते हैं कि कैसे ये एंथ्रोपोलॉजी बनी ही इसलिए है कि जो लोग दूसरे देशों पे जाकर राज करते हैं वो जाकर के उन देशों को स्टडी करें, उसमें उसके अपने निहित उसमें चीजें हैं जो ऐसा ही करवाएंगी आपसे। मेरे अपने बहुत सारे मित्र हैं, वो आध्यात्मिक दुनिया के लोग हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि मशीन, कोई भी मशीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अपना कोई मूल्य नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, करने वाले के ऊपर होता है कि वो उसका क्या इस्तेमाल करे। इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैल्यू न्यूट्रल है। धर्मपाल जी ऐसा नहीं मानते थे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इंस्ट्रूमेंट आर नॉट वैल्यू न्यूट्रल। Subjects like anthropology, like social sciences of today, they are not value neutral. इस बात को हमको समझना होगा कि इसमें क्या चीजें हैं जो अदृश्य रूप से उसमें समाहित की गई हैं, जो आपको एक ही तरफ ले जाएंगी। वो मैं पैराडाइम की बात कर रहा हूं, वो उसी पैराडाइम के अंदर आपको बांध के रखेंगी। ये जो आज की एकेडमिक दुनिया है उस पर भी मैं तो प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। हमको इसके हौवे से, हमको इसके एक अननोन प्रेशर जो हमारा भारत का आदमी हर समय महसूस करता है, जैसे ही वो गांव से शहर आता है तो उसको लगता है मैं ठीक नहीं हूं और मुझे ठीक होने के लिए थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो बोलना ही चाहिए और पैंट कोट तो पहनना ही चाहिए। नहीं, कोई बोलता नहीं है उसको, परंतु वो एक महसूस करता है एक दबाव। वही दबाव वो कभी जाता नहीं है हमारे यहाँ से। आप चाहे भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, आप यहाँ के प्रेसिडेंट बन जाए, वो दबाव फिर भी आपके ऊपर रहता है। इस दबाव को हमको पहले देखना पड़ेगा।
और देख करके इसको उठा के फेंक देना पड़ेगा। इसके बिना हम भारतीय चित्त मानस काल को समझ पाए ये संभव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये जैसे इस सत्र की जो निगोशिएटिंग विथ मॉडर्निटी लिखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई इससे। मॉडर्निटी से निगोशिएट, मॉडर्निटी से मतलब मॉडर्निटी इज ऑलमोस्ट इवल, it has no roots, and we cannot understand Bhartiya Chit Manas Kal unless we understand modernity. We need to understand the depths of modernity. Where is it coming from? And if we want to, then we have to do something about it. First of all, look within ourselves. हम अलग नहीं है इससे, ये हमारे अंदर तक सीप इन की है, हमारे अंदर तक ये गई है, तो हमको उसको भी देखना पड़ेगा और साथ साथ कुछ अध्ययन भी करना पड़ेगा। और मैं एक नाम इसके लिए लेना चाहता हूं, अगर मॉडर्निटी को समझना हो तो मुझे सबसे ज्यादा मदद अगर किसी से मिली है, अपार्ट शुरू में महात्मा गांधी से, वो महात्मा गांधी से मतलब खास करके हिंद स्वराज से, और उसके बाद ऑफ कोर्स धर्मपाल जी ने बहुत मदद की, लेकिन एकेडमिक रूप से सबसे ज्यादा मदद मिली प्रोफेसर A.K. सरन से। ये मॉडर्निटी ये इस प्रकार की चीज है कि जैसे सत्य तो है, लेकिन आप सत्य नहीं देख पाते क्योंकि अंधकार का पर्दा आपकी आंखों के सामने है। ये मॉडर्निटी वही अंधकार है। ये मॉडर्निटी का अगर छलावा हमारी आंख से और इसका दबाव हमारे आंख के आगे से अगर हटने लगे, तो हम स्वतः ही भारतीय चित्त मानस काल की ओर मुड़ जाएंगे। और भारतीय चित्त मानस काल, क्योंकि धर्मपाल जी ये सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन मुझे कोई झिझक नहीं है क्योंकि मैं तो छोटा आदमी हूं। बड़े लोगों को बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि ये मत बोलो, वो मत बोलो, हमको कोई समझे क्या फर्क पड़ता है। मैं एक शब्द का सनातन, एटर्नल की तरफ ही, भारतीय चित्त मानस काल और एटर्नल में कोई फर्क नहीं है। एटर्नल ट्रुथ, सनातन सत्य, इसमें बहुत बड़ा साइनर्जी है, बहुत बड़ा ऐक्य है। और लास्ट में एक बात मैं कहूंगा, वो ये कि हमको एक प्रयास करने की मुझे आवश्यकता लगती है, जिस पे धर्मपाल जी भी बोलते थे, कि हमको अपने इतिहास की पुस्तकों को, इसका मतलब हमारी जो महाभारत है, रामायण है, या योग वशिष्ठ है, या बुद्ध चरित्र है, या जैन साहित्य है, इनको खंगालने की जरूरत है। और विशेषकर वो पोर्शन जहां दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है, जैसे कि काकभूषणी और भृगु के बीच संवाद हो रहा है, या भृगु और भारद्वाज के बीच संवाद हो रहा है, या युधिष्ठिर और क्या कहते हैं भीष्म के बीच में संवाद हो रहा है। इन संवादों को देखेंगे तो हमको अपने सिविलाइजेशनल मूरिंग्स, उसकी फाउंडेशंस कुछ समझ में आएंगी। एक बात वो ये कहते थे, इसकी ये बहुत जरूरी काम है और इस बात में बहुत दम है। दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि हमारी जितनी बोली भाषाएं हैं भारत की, दक्षिण से लेके उत्तर और पूरब से लेके पश्चिम तक, इनकी कहावतें, इनके मुहावरे, इनके दोहे, इनकी चौपाइयां, इनके गीत, वो गीत नहीं जो मॉडर्न गीत नहीं, जो ट्रेडिशनल गीत है, इनको अगर हम इकट्ठा करें और इनको खंगालें, तो इसमें भी हमको हमारी सिविलाइजेशनल मूरिंग की झलक मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम बहुत सारा ज्ञान मिलेगा स्वास्थ्य के बारे में, हमको बहुत सारा ज्ञान भोजन के बारे में, खेती के बारे में, मौसम के बारे में तो मिलेगा ही, लेकिन हमारी बेसिक समझ कि कैसे, जैसे बेसिक समझ में 2-3 बातें हमको समझ में आती है। जैसे हमारे देश में हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, और पुनर्जन्म में जो लोग विश्वास करते हैं, अगर वो सचमुच में करते हैं, तो वो पाप कर्म थोड़ा कम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा नहीं, थोड़ा ज्यादा धार्मिक जीवन जिएंगे, क्योंकि डर वो रहेगा कि अगली बार भी पैदा होना है। तो साधारण आदमी भी जो बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं है, ज्ञानी नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा संयम आ जाएगा। या हम लोग इंटरकनेक्टिविटी, कि हम भी प्रकृति के हिस्से हैं, उससे अलग थलग नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन मूरिंग में कुछ फंडामेंटल बातें हैं, और भी बातें हैं, इसको हमको निकालना चाहिए। और बस मैं खत्म कर रहा हूं,
वो एक बात और, क्योंकि उनका नाम याद आ गया, शायद ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात हो, मैं पिछले 6 महीने से एक आदमी को बहुत ध्यान से देख रहा हूं। उनका नाम है अलेक्जेंडर डुगिन। ये रशियन है, फिलोसफर है। उनको मैं देख रहा हूं, वो बहुत ताकत से, बहुत शक्ति से वेस्ट के इंडिविजुअलिज्म को चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, भाई हमारी सिविलाइजेशन अलग है, हमारी मान्यताएं अलग है, और दुनिया में भारत की भी बात करते हैं, चीन की भी बात करते हैं, दूसरी सभ्यताएं हैं, उनकी अपनी मान्यताएं अलग है। So we should be working towards a multipolar world. This is a unipolar world जिसमें हम रह रहे हैं। मुझे लगता है उनकी बात में बहुत दम है, और मैं मानता हूं इस तरह के लोग दुनिया में और जगह भी होंगे। आजकल के शब्दों में सिविल सोसाइटी के लोग हैं। हम गैर सरकारी तंत्र से अलग हैसियत रखने वाले लोग, छोटे लोग, हम लोगों को इस तरह के दुनिया में बैठे, अलग अलग जगह बैठे हुए लोगों के साथ हमको संबंध स्थापित करने चाहिए, और हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप रशियन सिविलाइजेशन की मान्यताओं को माने, वो ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी मान्यताएं होंगी, हमारी अपनी मान्यताएं हैं, हम दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसी दुनिया हम बनाएं। तो मुझे लगता है धर्मपाल जी का भारतीय चित्त मानस काल को हमको थोड़ा एक व्यापक दृष्टि से हम देखें तो इससे बहुत कुछ निकलेगा। धन्यवाद। Anybody who wants to ask? I think Lalit wished want to ask a question. सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि हम जो जी रहे हैं वो एक अनिश्चितता की जिंदगी में जी रहे हैं। मोटी मोटी सी बात करूं तो अनिश्चितता की जिंदगी में जी रहे हैं, ना हमें कोई चीज कंफर्म पता है और ना ही हम किसी डाउट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम अनिश्चित हैं या डाउट में हैं। तो वो उसकी जो जड़ है कि हम क्यों नहीं, हम चाहते भी कि हम समझें, कंफर्म करें चीज को कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना चाहिए या किस तरफ वर्क करना चाहिए, या कंफर्म होना चाहिए, या अनिश्चितता की स्थिति ही सही स्थिति है, कोई कुछ सही नहीं है और कुछ गलत भी नहीं है। तो वो अनिश्चितता की स्थिति वो सही है कि गलत है, या एग्जैक्ट क्या करना चाहिए वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो उसकी मतलब हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं उस चीज को अच्छा फील करने के लिए, क्या करा जा सकता है? क्योंकि उसमें डाउट रहता है हमेशा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो शायद इस संबंध में ये क्वेश्चन पता नहीं मतलब उस डायरेक्शन में है या नहीं है, बट मेरे मन में था ये सारी चीज, ये क्वेश्चन एक। मैं इसमें एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों को, काफी लोगों को पता होगा, शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था हैमलेट। वो हैमलेट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? अनिश्चितता एक सत्य है, सनातन सत्य है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। यस। तो अब व्हाट डज इट मीन कि अनिश्चितता तो एक सत्य है जिसमें हम जी रहे हैं। लेकिन देखिए, ये आप और अपना साहित्य देखिए, हमारा भारतीय साहित्य या विदेश का साहित्य भी, जो उत्कृष्ट कोटि का साहित्य होता है, बड़े बड़े लोगों ने, महाकवियों ने, वो यही कहते हैं कि नायक या हीरो कौन है? नायक या हीरो वो है जो इस संशय से, अनिश्चितता से, धर्म संकट से ऊपर उठकर एक कदम उठाता है और उस कदम को विद कॉन्फिडेंस, विदाउट गिल्ट, उस कर्म को कर जाता है, चाहे उसमें उसकी जान जाए या ना जाए, कल को कुछ मिले ना मिले। हो सकता है आप कर्ण की तरह से हो, आप बिल्कुल ही हार जाएं। हो सकता है आप युधिष्ठिर की तरह से हो कि बहुत बड़ा नुकसान उठाकर भी राज सिंहासन आपको मिल गया। हो सकता है आप राम की तरह से हो कि आपको पूरा धर्म का आपने पालन किया और फिर उसके बाद प्रजा को भी सुखी रखा। हो सकता है आप कृष्ण की तरह से हो स्वयं कि वो भयंकर और महाविनाश को प्रयास करने पर भी बचा नहीं पाए और अपने घर के लोगों को भी नहीं बचा पाए। लेकिन अनिश्चितता छोड़कर और जिसको कहते हैं संशय छोड़कर, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, जो डिसीजन लिया और फिर उस डिसीजन पर आगे बढ़ गए, एक और उसको धर्म मानकर किया, यही हीरो है, यही नायक है और यही वैल्यूज के हिसाब से जीना है।
और मैं समझता हूं कि ये मैसेज साहित्य का भी है और दर्शन का भी है। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, मैं कृष्ण मोहन पांडे एक बात केवल जोड़ना चाहूंगा सर के भाषण में, गुप्त सर के, कि जो उन्होंने ये कहा कि हमेशा चॉइसेस मिलते रहने। अभी एक बच्चे ने, जिन्होंने पूछा ये प्रश्न कि हमेशा संशय में रहते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी एक डिसीजन होगा। जो अभी पवन भाई कह रहे थे कि होता रहता है, होता है, तो आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे तब भी एक डिसीजन, ना होना भी एक कुछ होना है, और उसमें हमारा इनएक्शन निहित है। जहां हम जाना चाह रहे थे वहां नहीं पहुंचे, तो अगर चुप रहे तो भी हमारी सहभागिता है किसी काम में। और प्रोफेसर गुप्त जी ने यही चीज कही, महाभारत की बात को आगे बढ़ाया कि धर्म और अधर्म की बीच की बात नहीं है। जो दुर्योधन के लिए उन्होंने कहा कि जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम न च मे प्रवृत्ति, सॉरी, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, प्रवृत्ति है जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति। पता है लेकिन मैं निर्णय नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ये बात जो उन्होंने आगे उसको बढ़ाया कि ये तो हर क्षण पर होना है, अपना हृदय ही महाभारत का स्थल होना है, कि छोटी छोटी चीजों में भी निर्णय लेते रहना है। जो अभी सर ने विपश्यना की बात कही कि जो क्षण को जीने की बात करता है, एक एक सांस कौन सी जा रही है, बाहर आ रही है। कबीर याद आ जाते हैं कि भाई हर सांस में अगर याद कर रहा है, सुमिरन कर रहा है, तो उसको दुख काहे को हो। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो दुख में सुमिरन करे तो, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो ये जो चॉइसेस हमारे सामने हमेशा हैं, सर ने टू बी और नॉट टू बी की बात कही, लेकिन चॉइसेस निरंतर हैं। हम बाएं जाएं कि दाएं जाएं, पीछे मुड़े आगे मुड़े, अश्वघोष कहीं इस तरह की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने के बाद वो सौंदर्य नंद निकल आते हैं गांव के बाहर, अपने महल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक क्षण मुड़ करके पीछे भी देखते हैं, उनकी सुंदर पत्नी है, और इतना सुंदर सा रूपक वहां पर आ जाता है कि तम गौरवम बुद्ध गतम चकर्ष भार्यानुरागा पुनराचकर्ष। की आगे तो गौतम बुद्ध का उपदेश था, तुरंत ज्ञान मिला, लेकिन तुरंत उनको मोह ने पीछे खींचा। उनकी गति तो उस राजहंस की तरह हो गई जो धारा के विपरीत चलने की कोशिश कर रहा है, और फिर वहीं पहुंच जाता जहां के तहां खड़े रह गए। तो जहां के तहां खड़े रह जाने में तो फिर आगे बढ़ने की बात नहीं होगी। और पवन भाई ने तो इतनी अच्छी, उनकी बहुत छोटी सी पुस्तक, कहने को पुस्तक छोटी है लेकिन दृष्टि देती है। भारतीय मानस, चित्त मानस और काल, छोटे छोटे निबंधों का संग्रह, लेकिन दृष्टि, नई दृष्टि देता है। वो दृष्टि देता है कि भाई इस चीज को तो औरों को देखना चाहिए था, जिन्होंने देखा उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो अगर तब नहीं हुआ तो अब से तो हो, जब जागो तब सवेरा। सर आपने इतने सुंदर ढंग से इस बात को रखा, सहज ढंग से रखा, और मुझे भी इसमें जोड़ दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको प्रणाम। और दोनों महर्षियों, महापुरुषों को मुझे कहना चाहिए, आज के ऋषियों को, क्योंकि ऋषि तो देखे जो समय से आगे देख ले, पीछे भी दूर तक देख सके और आगे भी देख सके। जयेश जैन पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्लेन भारतीय चित्त मानस काल विदाउट जस्ट जक्सटापोजिंग इट अगेंस्ट वेस्टर्न और मॉडर्निटी? भरत गुप्त जी, आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं, या पवन जी आप बोल सकते हैं? पवन जी से कहें। No, in one word, no. I mean, what? How can you? This is like a maths question, no? कि explain in one word, मतलब कैसे explain किया जाए? इसको तो समझने की चीजें हैं। ये भारतीय चित्त मानस काल कोई एक कागज पे लिख दें कि ये भारतीय चित्त मानस काल है, ऐसी बात तो है नहीं ना। मैंने तो सिर्फ इतना कहा, वेस्टर्न माइंड की बात नहीं है कि वेस्ट मॉडर्निटी को समझे बिना हम लोग करप्ट हो गए हैं। पढ़े लिखे लोग, हमारा पढ़े लिखे लोगों का करप्ट हो गया है। करप्ट इन द सेंस हमारा परसेप्शन बिगड़ गया है, हमारे में दृष्टि दोष आ गया है। और ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं आप पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं अपनी समझ कह रहा हूँ
कि हमारी दृष्टि, हम जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी दृष्टि में दोष आ गया है पढ़े लिखे वर्ग के अंदर, और वो दोष का एक बहुत बड़ा, कुछ व्यक्तिगत चीजें भी उसमें होती हैं इस दोष में, लेकिन सामूहिक रूप पे जो सबसे बड़ा दोष आया है वो आया है आधुनिकता की वजह से, जिस आधुनिकता में हम और आप रह रहे हैं। तो मैंने सिर्फ वेस्ट को नहीं लाया, मैं कह रहा हूं जब तक उसको नहीं देख पाएंगे हम कि ये क्या है ये आधुनिकता आज की, तब तक हमको वो भी नहीं दिखाई देगा। ये कोई भारतीय चित्तमानस का वैसा थोड़ी ना कि ये कोई 10 कमांडमेंट्स है कि जी ये है भारतीय चित्तमानस का, ऐसा नहीं है। ये दृष्टि है, भारतीय दृष्टि, कैसे उसने देखा है, कैसे उसने अपने दुख और सुख को झेला है। उसके आप मजाक देखिए ना, आप आप और हम अगर कोई मजाक करेंगे, आप कहीं और रहते होंगे, मैं कहीं और रहता हूँ, लेकिन हम समझ जाएंगे कि हम दोनों भारतीय हैं। पर कई बार वो मजाक अगर एक वेस्टर्न आदमी सामने होता है, उसको नहीं समझ में आता कि ये क्या इसमें मजाक क्या है, ये क्या चीज है जो हमको मजाक लगती है या हमको अच्छी लगती है और दूसरे किसी को समझ में ही नहीं आती है, या दूसरे को एक तरह से लगती है और हमको नहीं लगती है। इस बात को पकड़ने की जरूरत है कि ये भारतीय मानस कैसे देखता रहा है चीजों को, कैसे डील करता रहा है चीजों के साथ, मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, वृक्ष हो, जंतु हो, दूसरा व्यक्ति हो, उसके साथ कैसे रिश्तों को देखते रहा है, और हमारा जो दूसरा तरह का दिमाग बन गया वो कैसे देखता है चीजों को। जी जी। शिवांगी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? Yes, sir. First of all, I would like to thank both Professor Bharat Gupta sir and Pawan Gupta sir for such an enriching lecture. Like, it has opened up new avenues for me to read and relook in a new light. Thank you, sir, for this wonderful lectures. My question is for Pawan sir. Sir, you mentioned that we need to look at modernity in a new light, or we need to re-look at the modernity to understand it better. So you mentioned that one of the book that helped you is Hind Swaraj. What was the other work that you mentioned, or to understand modernity in a new light? I mentioned the person, Professor A.K. Saran. A.K. Saran. His books have been published by Tibetan Institute of Higher Studies in Sarnath. He was an amazing mind. He was in the tradition of Kumar Swami, Ananda Kumar Swami, but his writings may seem a little difficult, but it is very original. And even if you do slow reading of those books, you will perhaps it will help you to understand modernity and Sanatan as well, and tradition as well. Yeah. Thank you, sir. Yeah. If I can make an observation, you see, Pawan Gupta ji mentioned Hind Swaraj. Now, this is written about 1910, I think. 1910 के आसपास है ना पवन जी, उन्होंने हाँ। अब देखिए, उस समय में भी, और यानी 1910 में या उससे पहले भी, विवेकानंद या उससे और थोड़ा पहले आप पूरे कॉलोनियल पीरियड में चले, तो वहाँ जो ये प्रश्न पूछा गया कि क्या भारतीय पहचान को पश्चिम के से डिस्कशन किए बिना या कंपेयर किए बिना हम कर लें, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि इसलिए नहीं कर सकते कि आप आक्रांत रहे हैं, आप कॉलोनाइज्ड रहे हैं, और उसने आपको बहुत बदल दिया है। और जैसा पवन जी भी इतनी देर से समझा रहे थे, धर्मपाल जी के लेखन के माध्यम से, इतना ज्यादा बदल दिया है कि हमारे अंदर आत्मग्लानि पैदा हो गई है। तो अब अगर आप अपने शुद्ध स्वरूप को भी लाएंगे, तो उसको लाने के लिए आपको निरंतर शोधन किसका करना है, उसका जिक्र तो करना पड़ेगा भाई। तो वही तो वेस्ट है। अब एक बड़ी प्रैक्टिकल बात ले लीजिए, आप चाहते हैं भारत सरकार रूस का समर्थन करे या अमेरिका का करे, ये एक चॉइस है। इस चॉइस का कोई सिद्धांत तो होगा? क्या सिर्फ कन्वीनियंस होगा कि कहां से तेल लेना है और कहां से और चीजें, हथियार लेने हैं? नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ सिविलाइजेशनल बैटल किसकी है और कहां कहां की है, कौन लोग किस लिए लड़ रहे हैं,
और फिर हम उसमें अपना रुख कैसे अपनाएं। तो ये बात है कि हम निरंतर आपको पश्चिम को देखकर जांचकर ही हम क्या हैं, ये तो हमारी वांग्मय परंपरा में वेद से लेकर श्री अरविंद तक महान लोगों ने लिख दिया, हमारी वैल्यूज लिख दी, हमारे सिद्धांत लिख दिए, वो सब हमको मिल जाते हैं। लेकिन उन सबको आप क्रियान्वित कैसे करें, उसके बीच में हमारा लगभग 800-900 साल का कॉलोनाइजेशन आ जाता है। पहले इस्लामिक कॉलोनाइजेशन और उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन।